بہت بڑی عبادت ہے۔ اب آتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف کہ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت فرمائی کہ اللہ کے نبی اپنی بے مثل اور لا ریب زبان سے فرما رہے ہیں کہ اپنی محفلوں کو زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب کہ اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ زینت بخشو۔ تو اس کے لیے آپ یہاں آئے بیٹھے ہیں اور یہ ایک عبادت ہے۔ یہ بھی حدیث نبوی سے ثابت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وجہ علی عبادہ، ایک جگہ پہ فرمایا فنظر وجہ علی عبادہ۔ مفہوم ایک ہی ہے کہ جو علی کے چہرے کو دیکھے گا تو وہ عبادت ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وقت ایسا آئے گا کہ علی پاک ہم میں موجود نہیں ہوں گے، پھر ہماری عبادت کیسے ہوگی؟ تو آپ سرکار نے فرمایا فذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر جہاں پر کیا جائے، جو علی کا ذکر کرے گا وہ بھی عبادت ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ علی کا ذکر کرنا مشکل ہو جائے، پابندیاں لگیں، دھماکے ہوں، پرچے ہوں، پریشانیاں ہوں، تو پھر علی کا ذکر کیسے ہوگا؟ تو مولا فرماتے ہیں الا حب علی عبادہ، دل علی کی محبت دل کے اندر رکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ ہم عبادت کرنے کے لیے جمع ہیں یہاں پر، کیونکہ عادتاً ہم یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں تمام ان دوستوں سے، مومنین سے مخاطب ہوں کہ اگر بچہ صبح گھر جائے، صبح گھر سے سکول جائے اور شام کو واپس آ جائے، سکول کے اندر نہ جائے، دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا کر واپس آ جائے، اس کی یہاں پر حاضری سکول کے اندر نہ لگے، تو کیا اس کی حاضری ہو جائے گی؟ وہ بچہ غیر حاضر تصور ہوگا۔ اسی طریقے سے کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اب آپ نے دیکھا کہ ہاسپٹلز میں آپ چلے جائیں، اسکولوں میں چلے جائیں، وہاں پہ بائیو میٹرک تصدیق ہے، بندہ ڈیوٹی پہ پہنچتا ہے، اپنا انگوٹھا لگاتا ہے تو وہ وہاں پر حاضر ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب آ گئے ہیں ماشاءاللہ، ریاض شاہ صاحب، تو وہ انگوٹھا لگاتا ہے تو اس کی حاضری لگ جاتی ہے۔ اب ہم جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے میں ان تمام سے ملتمس ہوں اور ان سے گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ یہاں پر پنڈال میں مجلس سے اعضاء کے اندر جس مقصد کے لیے اپنا ٹائم نکالا ہے، کرایہ خرچ کیا ہے، اتنی دور سے آپ آئے ہیں، تو آپ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بارگاہ کے اندر جہاں مجلس ہو رہی ہے وہاں تشریف لائیں تاکہ آپ کی بھی حاضری لگے۔ اور یہاں پر حاضری لگانے والا کوئی سکول کا ٹیچر نہیں ہے، یہاں پر جناب سیدہ ہیں، جہاں پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات موجود ہے، یہاں پر 14 کے 14 موجود ہیں جو ہماری حاضری لگا رہے ہیں۔ لہٰذا جس مقصد کے لیے انسان ہے وہ اسے وہیں پر پہنچنا چاہیے۔ دور دور سے آپ آئے ہیں، خرچہ کر کے آئے ہیں، سب سے قیمتی چیز ٹائم نکال کر آئے ہیں، اور آپ مجلس میں آئے نہ باہر بیٹھے رہیں، گلی میں کھڑے رہیں، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ نہ دیکھا کریں کہ پڑھنے والا کون ہے، یہ دیکھیں کہ ذکر کن کا ہو رہا ہے۔ جن کا ذکر ہو رہا ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس شان کریمی کے مالک ہیں کہ یہ لمحوں میں ایک گناہ گار کو وہاں سے نکال کر، دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ حور کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ برائے خوشنودی قائم آل محمد بلند تر صلوات۔ یہ بہت پرانا پروگرام ہے۔ آج کی مجلس اعضاء 26 محرم الحرام، اور ایک عجیب یہ اتفاق بھی ہوا کہ آج 14 اگست بھی ہے، یہ پاکستان کی آزادی کا دن ہے، اور معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے وطن کے ساتھ محبت اور وفاداری ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ہمیں اپنے پاکستان کی ہر دم خیر مانگنی چاہیے۔ اب آپ کے سامنے میں چند منٹ کے لیے
زحمت دوں گا ذاکر اہل بیت جناب سرفراز صاحب کو، اس کے بعد جناب ذاکر اہل بیت جناب شاہد صاحب آف گوجرا، ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب وحید صاحب آف فیصل آباد، ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب علی رضا صاحب آف فیصل آباد، اور حرف آخر کے طور پر علامہ سید شمس رضا شمسی آف مرید کے رونق افروز ممبر ہوں گے، اور فضائل شان رسالت اور فضائل اہل بیت کے علاوہ شبیہ برآمد ہوگی غازی باز شہنشاہ کی شبیہ علم۔ برائے خوشنودی قائم آل محمد بلند تر صلوات۔ تھوڑے سے ہم ہیں یہاں پر، تو جو ہیں وہ بھی دور دور بیٹھے ہیں، ادھر سامنے آئیں، پہلی صفوں میں آئیں۔ جب نماز کے لیے ہم جاتے ہیں نا مسجد میں، تو اکثر چھوٹے ہوتے نا ہم جھگڑتے تھے کہ پہلی صف میں جانا ہے، تو پہلی صف کا درجہ زیادہ ہے۔ تو برائے خوشنودی آل محمد بلند تر صلوات۔ سرور ہے شہر علم اور علی اس کا باب ہے، سرور ہے شہر علم اور علی اس کا باب ہے، حیدر فضیلتوں کی مکمل کتاب ہے، اور کیسر جس انجمن میں ہو علی کا تذکرہ، اس محفل میں سانس لینا بھی ثواب ہے۔ نعرہ حیدری، علی حق نعرہ حیدری۔ درود پڑھے پاک اللہ۔ ہم خاک پہ نور کی مورت کو علی کہتے ہیں، ہم خاک پہ نور کی مورت کو علی کہتے ہیں، اور بے بدن ذات کی صورت کو علی کہتے ہیں۔ ہم خاک پہ نور کی مورت کو علی کہتے ہیں، اور بے بدن ذات کی صورت کو علی کہتے ہیں۔ معراج کے پردے کا افسانہ سنو ہم سے، ہم اللہ کی ضرورت کو علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ من کان نبیا آدم بین الماء والطین صلوات۔ بسم اللہ اللہم انی اسألک بحق آسیہ بنت مزاحم
अली अज़ा हुसैन अलैहिस्सलाम पंजाबी दी रुबाई है। हैदर सरदार जमाने दा ए दुनिया अंधी कोई नहीं। हैदर सरदार जमाने दा ए दुनिया अंधी कोई नहीं। बिच खाक दे नूर मिला देना ए दानिशमंदी कोई नहीं। कोई है हम सरता ले आओ मेरा वीर पाबंदी कोई नहीं। असा पीर अली को राह पर मने जेदे बाद बुलंदी कोई नहीं। सलवात पढ़िए। आफ्ताब तो मोटर फाटी और गड्डी न भूल दुनिया ते न भूल दुनिया ते न रुल दुनिया ते अले दाचाने मिलन मुश्किल। न रुल दुनिया ते न भूल दुनिया ते अले दासाने मिलन मुश्किल। अले दे अपने पेरा भी निरल दे। अले दे अपने पेरा भी निरल दे। किसे कमीदार रलन मुश्किल। इज्जत तेरी कफन बिच बणिया। इज्जत तेरी कफन बिच बणिया। जनाज़ा एदा अली ने पढ़िया। जनाज़ा एदा अली ने पढ़िया हो। आखे सुलेमाने मोया बेईमाने हशर तक एदा उठन मुश्किल। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है उनसे मुल्तमिस हूँ कि बारगाह के अंदर, पंडाल के अंदर जहाँ पे मजलिस अज़ा हो रही है, ज़िक्र हुसैन हो रहा है, ज़िक्र अहले बैत हो रहा है, वहाँ तशरीफ़ ले आएँ। बराए खुशनुदी कायम आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। नजात की जब सबील करना, हुसैन जैसा वकील करना। सैयद नजम सत्तैन हसनी अल्लाह उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती दे, उनके कलमात हैं कि नजात की जब सबील करना, हुसैन जैसा वकील करना। हुसैन मिलता हो अगर सर के बदले तो फिर सजदे क्यों तवील करना। बराए खुशनुदी कायम आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। जिन जिन के इमाम ने उन्हें मना नहीं किया कि दरूद नहीं पढ़ना, वो तो बावाज़े बुलंद दरूद पढ़ें, बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज 14 अगस्त भी है। शाह साहब कह रहे हैं तराना पढ़ें। 14 अगस्त भी है और वतन से वफादारी ईमान की अलामतों में से एक अलामत है। तो एक पंजाबी शायर ने एक रुबाई लिखी, तो मैंने कहा 14 अगस्त की मुनासबत से आपकी गोशे गुजार कर दूँ।
मैं पाकिस्तान बनावन कीते है कीती कोशिश तन मन दी। ये कह कौन रहा है? ये तख़य्युल शायर का है तो कह रहे हैं जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब। मैं पाकिस्तान बनावन कीते है कीती कोशिश तन मन दी ते मेरी ख्वाहिश दी तकमील थई हे सब बरकत पंज तन दी। मुहम्मद ते अली दे सदके विच रासी दम दम खैर वतन दी ते तुसां पाकिस्तान को समझना है मलकियत बतूल दे चन दी। अब आपके सामने ये प्रोग्राम जारी और सारी है, कई सालों से जारी और सारी है। दुआ की अपील है आप तमाम से, दिल में ही दुआ फरमाएं कि आप जो जो मनाजात लेके आएँ अल्लाह ताला आपकी तमाम मुरादों को शरफ़ कबूलियत से नवाजे और बानियान मजलिस के ख़र्च अखराजात अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। और जिन जिन भाइयों ने इसके अंदर दामे दरहमे सुखने तावन किया है उनकी तौफ़ीक़ात में अल्लाह ताला मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। और हाज़रीन मजलिस और महफ़िल और बानियान मजालिस के जितने अज़ीज़ व क़ारब इस दुनिया से इस जहान फ़ानी से दार बका की तरफ कूच कर गए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और दर्जात की बुलंदी के लिए, इन तमाम मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए और मजलिस की कबूलियत के लिए एक दफ़ा बाआवाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। नारा नहीं आप ठीक तरह से लगा रहे हैं। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी वल हैदरी, दोबारा फिर हैदरी, दोनों हाथ उठा के हैदरी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अब आपके सामने ज़ाकिर अहले बैत जनाब, बड़ा मुश्किल सा नाम है जी, जनाब अली वहीद तुफ़ैल मुहाजिर ऑफ फैसलाबाद रौनक अफरोज़ मेंबर होंगे और अपने मखसूस अंदाज़ में आपको फ़ज़ाइल अहले बैत और मसाइब अहले बैत से मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। और इनके बाद ज़ाकिर अहले बैत जनाब अली रज़ा ऑफ फैसलाबाद रौनक अफरोज़ मेंबर होंगे और हरफ़ आखिर के तौर पर मौलाना शम्स रज़ा शमसी शान रिसालत और अज़मत अहले बैत के ऊपर उनका मज़मून है आज का। और बरामदगी होगी शबीह अलम मुबारक की। बराए खुशनुदी के कायम आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। चलें जी, ये ज़ाकिर अहले बैत जनाब अली वहीद तुफ़ैल मुहाजिर साहब के इजाज़त से ही, क्योंकि उनका टाइम था, उनके एक शागिर्द हैं ज़ाकिर अहले बैत जनाब इब्रार हुसैन साहब और फैसलाबाद 5 मिनट के लिए रौनक अफरोज़ मेंबर होंगे। बराए खुशनुदी कायम आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे विलायत, नारे हैदरी। खुशनुदी आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। दुआ हो रहा है। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जत वलिय्यन व हिज़न व क़ाइदन व नासिरन फ़ीहा तवीला सलावत सारे हज़रात में। फिर भी अपनी ज़ुबानों में मतर करो ना दरूद अले मोहम्मद दे बुलंद आवाज़ नाल सलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, दुश्मन अहले बैत लान, पढ़ो सलावत खानदान तहरीर ज़ौक़ बुलंद आवाज़ नाल अल्लाह। सब तो पहले मेरा स्टेज सेक्रेटरी साहब ने तारफ़ तो करा देता है, लेकिन मैं दसना चाहना क्योंकि मेरा फ़ख्र है, मेरे भतीजे वहीद तुफ़ैल साहब ज़ाकिर तुफ़ैल साहब के बेटे कि मेरा भतीजे, क्योंकि मेरा फ़ख्र है मैं इन्होंने नाल पढ़ाना है, लेकिन पुत्र मैं इन्होंने हक़ दुआ करे।
ठीक है ना, ये साड़ियाँ दुआओं का बनया ज़ाकिर। अगर तवज्जो हो मैं थोड़े जे वक्त बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहना है, इजाज़त मैं जिक्र पाक शुरू कर देवा। हुसैन को सलामत रखे। 4:17 तो मजलिस का आगाज़ करेंदा पे फ़ानी जहान ने एक दिन इस जहान नू छोड़ देना। तवज्जो मेरे पास मिंबर हुसैन ते मौत आ जावे, इस तो वड्डी खुश नसीबी है कोई ना। घर च मौत आ जावे, मैं अपने पुत्रां बिरावां नू धीआं नू घर वाले नू एक वसीयत कीती है, तुसा करना क्या है। घर च मेरी मौत आ जावे, तुसा करना क्या है। लहद में किबला रुख इस बूतराबी को लिटा दे। लहद में किबला रुख इस बूतराबी को लिटा देना, नजफ की पाक मिट्टी से मेरी मिट्टी मिला देना। नजफ की पाक मिट्टी से मेरी मिट्टी मिला देना। करामा कातबी का काम है, मेरे गुनाह लिखना अली का काम है, लिखा हुआ सारा मिटा देना। हुसैन तुम सलामत रखे। सरकार हुसैन दी शान नीचे करो भाई, और सुन लो। जब गर्दनें झुकी हों तो सर काटते हैं लोग। जब गर्दनें झुकी हों तो सर काटते हैं लोग। झुकता नहीं वो जब्र से जो सरफराज हो। झुकता नहीं वो जब्र से जो सरफराज हो। कटना सरे हुसैन का मुमकिन न था कभी, कातल भी मुंतजिर थे कि वक्त नमाज हो। मेरे हुसैन दी ज़ात बुलंद सलवात पढ़ो। बस एक कसीदे दे 2 शेर, कोई खुतबा नहीं। ये प्रोग्राम मैं जनाब को कसीदा सुना दे। ए हुसैन उम्मते खुफ्ता को जगाने वाले, मिट गए खुद वो तुझको मिटाने वाले। तूने समझा दिया वो मुनाफिक है जो हिजियान कहे, हम तो हैं नेज़ों पे चढ़कर कुरान सुनाने वाले। मेरे हुसैन की ज़ात सलवात पढ़ो मैं कसीदे को। हक निभाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। तवज्जो मेरे पास रहे। मेरे घर में चराग जलते हैं। मेरे घर में चराग जलते हैं। आना जाना मेरे हुसैन का हर ज़माना मेरे हुसैन का है। तवज्जो मेरे पास रहे। जिसको काबा ये लोग कहते हैं, जिसको काबा ये लोग कहते हैं, घर पुराना मेरे हुसैन का, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। बहुत मेहरबानी, बहुत सुनो इस्तकबाल की तले। ये शेर बहुत प्यारा जे शेर मैं अशरे महरम कोट सरवर पढ़ रहा हूँ। इस शेर से मैंने ढेर सारे इनाम हुसैन का सबका मिले, लेकिन तुहाड़े को दुआ लेना चाहना इंदा साल तक ये शेर याद रहे। जिस जगह हुए बना जाते हैं,
बहुत मेहरबानी थोड़ी मोहब्बत में के आखिरी शेर तवज्जो मेरे पास रहे। आज जो कुछ जमीन से उगता है, आज जो कुछ जमीन से उगता है, दाना दाना मेरे हुसैन का हर ज़माना मेरे हुसैन। इब्रार हुसैन साहब, तूने सदफ तो देखा है गौहर को छोड़कर। ਉਹ ਸਿੱਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ मोती ਹੁੰਦਾ है। असल से वो जो गौहर है ना, असल तो उसी की कीमत होती है, सिप्पी तो उसकी हिफाजत करती है, उसके साथ होती है, लेकिन वो असल नहीं है। तूने सदफ तो देखा है गौहर को छोड़कर, तेरी नजर है जाम पर कौसर को छोड़कर। कर ले लाख हज मगर फिर भी ये याद रख, कुछ भी ना आएगा हाथ तेरे हैदर को छोड़कर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अब आपके सामने ज़ाकिर अहले बैत जनाब अली तुफ़ैल मुहाजिर बराए खुशनूदी कायम आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। कबल इसते नौकरी शुरू करिए। सारे पिछे बैठे हो, मोदा का ज़ाकिर होने के नाते हथ बन के आदत में सारे अगे तशरीफ है, किस बच्चे बैठे हैं, मजलिस का माहौल बन गया, सारे गए नामे मौला माशाअल्लाह सारे आए हो मौला दी मजलिस के विच पुरसा देन ते लोके नहीं पाना चाहिए। फ्रंट ते हो सारे बिस्मिल्लाह सारे तशरीफ लैके भाईजान अगे तशरीफ लै बिस्मिल्लाह सारे अगे तशरीफ लैके माशाअल्लाह माशाअल्लाह अरहमल्लाहु मन क़ारिअ अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा आफ़िदातहुम तहवीर अलैया 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 बेहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। या मौलाती या फातिमा तो अभी सीनी मिल के सलवात पढ़ो। फिर भी अपनी ज़ुबान मुअत्तर करो सदा दी ज़ात बुलंद तर सलवात। मजलिस दा आगाज़ है, जेड़े जेड़े अपनी दुआवां ले आयो दुआवां दी कबूलियत वास्ते सलवात पढ़ो। मखदूमा को नैन बीबी दी ज़ात ते अखी बंद करके उच्ची सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। इस नारे लाते रहने, नारा तकबीर जिस टाइम लाइए ना कोशिश करा करो इसनों बहुत बुलंदी नाल लगाओ। इसकी वजह क्या है, किसी बंदे अज तक गल नहीं। नमाज रोज़ा शरीफ, नमाज रोज़ा हज ज़कात कलमा खैरात कर दे क्यों सारा कुछ कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह को राज़ी करने वास्ते। तो जिस टाइम अल्लाह का नाम है सब तो जिक्का चाहिए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। या अलीहिस्सलाम दूजा नाराए हैदरी, या अलीहिस्सलाम त्रीजा नाराए हैदरी, या अलीहिस्सलाम चौथा नाराए हैदरी, या अली
अलैहिस्सलाम पंजां दे मंदन वालेओ दोवें हाथ चा के पंज पूरे करो पंजवां नाराए हैदरी मिल के सलवात पढ़ो माशाअल्लाह चिट्ठियां वालियां वाले बुजुर्ग बैठे हो सदात उज़ाम इजाजत है महकीर नौकरी शुरू करा लो एक मिल के नीवी जी सलवात पढ़ो जिक्र शुरू माशाअल्लाह मौला दे जेड़े जेड़े मातमी बैठे हो हफ्ता करो माशाअल्लाह माशाअल्लाह सारे ही मौला दे मातमी हो तो गाजी चर्चा दे मरीद मेरा दिल है आज दी मजलिस दा आगाज मौला दी मातमी दी शान तो कर छोड़ा मौला दा मातमी मिंबर हुसैन ते खड़ के आदा होवे मौला दा मातमी होवे शरीयत दा पाबंद जमाने दे वलियां तो घट कोई नहीं जमाने दे वलियां तो घट कोई नहीं मौला दा मातमी ये बुजुर्ग थी गया वक्ते नज़ा वक्ते आखिर करीब आया पुत्र नु बुला के दा बेटा मैं मार्फत वाला क्योंकि मार्फत वालियां नु मन्निया है मातमी थोड़ी शान बुजुर्ग खुसूसन थोड़ी तवज्जो मैं मार्फत वाले मन्निया है मैं जानदा मेरा वक्त आखिर करीब है मैं बिल मुशाफा मौला दा दीदार करन लगा बेटा मेरी रूह प्रवास कर जाए मैनू गुसल देवे कफन देवे तदफीन हो जाए मैं नहीं आता रात को अगले दिन सवेरे मेरी कब्र ते जरूर आवे अच्छा ते आके करना क्या है मेरी कब्र ते आके कुछ नहीं पूछना आके पूछना बाबा जान किवें पई निभदी है कुछ बंदे हैरान हो गए ने ये मुर्दा कब्र दे अंदर ते सवाल ते जवाब वो ते मुनकर नकीर करने नहीं ये पुत्र को करवाई खड़ा इको घट अच्छा बादशाह मेरी गल सुन लो कि जेड़ा हुब्बे अली च वलाए अली च मरदा है मुर्दा नहीं और जिंदा होता है सरकार दी हदीस है ना शहीद होता है शहीद जिंदा होता है हो गया इस बुजुर्ग का इंतकाल हस्बे वसीयत हलाली कराई गुसल दिता कफन दिता तदफीन हो गई सवेरे हलालियां वांगू कबर ते आया है आके पूछा उस बाबा जान किवें पे निभदी है जवाब सुने बाबा जान किवें पे निभदी है अली दा मुरीद हाई मातमी हाई कबर दे अंदर मुस्कुरा के आता है सांस लेता हूं तो जन्नत की हवा आती है बोले 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 मातमी बोले सांस लेता हूं तो जन्नत की हवा आती है आधा दिल धड़कता है तो मातम की सदा आती है सांस लेता हूं तो जन्नत की हवा आती है दिल धड़कता है तो मातम की सदा आती है आधा बेटा पूछते हैं आकर कब्र में मुझसे मलाइक आधा बाबा जान केड़ी गल आधे ने क्या तू अलम उठाता था क्या तू अलम उठाता था क्यों आधे ने तेरे बदन से खुशबुए वफा आती है नारा सुनाओ शाद आमदा की कसम है मैं मजलिस का आगाज कर छोड़ा है बिल्कुल नारा लावन की जहमत करनी नहीं तुसी ते मेरा दिल है नारे अगे तुसी वो लाने ने जिहड़े तुहानूं याद ने ते कुछ नहीं कुछ मैं अपने आप नहीं सुनाना क्योंकि हर मजलिस असीं सुनवाने आ नारियां वास्ते अब फड़ लो भाई लो तुहानूं उठाना होवे ते 5 मिनट लगदे ने मेरे वास्ते लेकिन मेरा दिल है कि अज 2-4 कसीदे इस तरह के सुनावां कि जिहड़े सुनने के काबिल होण मिल के सलवात पढ़ो कसीदे पढ़ो फिर भी सवाब पढ़ो लो वादा किया है कुरान तारीख हदीस यो पढ़ना है एक कसीदे का 2 शेर सिर्फ थोड़ा माहौल एडजस्ट करने वास्ते उत्तों भाईजान जेडे फ्रंट से बैठे हो जेडे अदील भाई को सुनते रहते हो ठीक है ना फिर उन्होंने वास्ते 2-4 कसीदियां के शेर ने एक बुलंद सलवात पढ़ो भाईजान तारीख गवाह है आज हर बंदा नारे वखरे बना रहा है नारे फकत 3 ही आए हैं नारा तकबीर नारा रिसालत ते नारा हैदरी दलालत करता है बहादरी दी
ਜਿੱਥੇ ਬਹਾਦਰੀ ਆਏਗੀ ਉੱਥੇ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਆਏਗਾ। ਇੰਜੇ ਗੱਲ ਏ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇੜਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਕੇ ਨਾਰੇ ਨਵਾਜ਼ੇ किया ये मौला के नारे नवाजे किया ये मौला के नारे नवाजे किया ये मौला के नारे नवाजे के नारा किया ये मौला के नारे नवाजे 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 किया सुनो लापता कौन है बिस्मिल्लाह। आ मेरा वीर खालके कायनात ने कलम अता की है। माशाल्लाह जीरक लोग हो। एक जुमला आखन लगा एक होंदा है खालिक एक होंदी है मखलूक है ना। खालिक ते मखलूक का फर्क कितना है थोड़े जहन च आ गया। एक बंदा दावा किया बहुत बड़ा वफादार है। मैं क्या अगर वो वफादार है मैं चैलेंज करदा केड़ी गल है मौला के नारे नवाजे किया ये मौला के नारे नवाजे किया ये मौला के नारे नवाजे किया सुनो लापता कौन है तेरे अलम आके खुद देख लो तेरे अलम आके खुद देख लो वफा का खुदा कौन है जी बिस्मिल्लाह। हो गए मजाज साहब थोड़ा मोमना दा दावा जाकर दी इब्तदा साडी इंतहा। हाँ आ मेरा वीर अगर थोड़ा दावा है मैं चैलेंज करदा केड़ी गल जरा आप सोचो ये किसने कहा था अलीगढ़ न होते तो मैं मर गया था बिस्मिल्लाह जरा आप सोचो ये किसने कहा था अलीगढ़ न होते तो मैं मर गया था जरा आप सोचो ये किसने कहा था अलीगढ़ न होते तो मैं मर गया था तेरी अक्ल में फिर भी आया नहीं तेरी अक्ल में फिर भी आया नहीं कि मुश्किल कुशा कौन है सुनते आओ मजाज बनाते आओ सीधे में इस तो बाद पढ़ने थोड़ा मजाज सेट कर लगा। लै मेरा वीर लंबा हो जाएगा एक शॉट मैं शॉट क्योंकि भाईजान भी मेरे पास लेते थे। आ मेरा वीर एक बंदा चिट्टी दाढ़ी बहुत बड़ी कुर्सी मस्जिद नबवी दा सहन याद आया भी बंदा चिट्टी रत्ती दाढ़ी बड़ी सारी कुर्सी अगे बड़े इंदे सहाबियां दा हजूम पर्चियां हाथ वो सवाल करते हैं ये जवाब देंदा है। अब बुजुर्ग गल दसा मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक ईमो वाइबर वो जनाब टीवी ते गारे है ना दसा की करता है ये सवाल देंदा है सवाल आंदे ने जवाब देंदा है अल्लाह दी कसम है जवाब घट ते उससे ज्यादा दसदा है। हाँ मसले का नुस्खे ज्यादा दसता है ये आता है नौज बिल्ला मिन ज़ालिक अली काबे च आया ही नहीं ये आता है अली काबे च आया ही मैं आता 24वीं सदी दा नालायक मौलवी कुछ हया कर आख लगा कि मैं क्या सुन केड़ी कर जो खुद को अली से मुबर्रा करेगा तो काबा भी उस पे तबर्रा करेगा।
ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ, ਮਜਮੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ, ਉਹ ਨੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿਵੇਂ ਬਈ जो खुद को अली से मुबर्रा करेगा तो काबा भी उस पे तबर्रा करेगा। जो खुद को अली से मुबर्रा करेगा तो काबा भी उस पे तबर्रा करेगा। ये काबा बनी जिसकी है जगह, ये काबा बनी जिसकी है जगह, अली के सिवा कौन है। हर शख्स नहीं लाई के मद्दाहे हैदर और अगयार को ये तर्ज़े कलाम आ नहीं सकता। मर जाएगा मुनाफिक ना पुकारेगा अली को। वजह क्या है? नापाक जुबान पर ये पाक नाम आ नहीं सकता। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਨਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨਾ जो खुद को अली से मुबर्रा करेगा तो काबा भी उस पे तबर्रा करेगा। जो खुद को अली से मुबर्रा करेगा तो काबा भी उस पे तबर्रा करेगा। ये काबा बनी जिसकी है जगह, ये काबा बनी जिसकी है जगह, अली के सिवा कौन है। अली हक जेरा नारा न मारे ओदा जम्मत के शक ओदा राय न कक अली हक सानू ए पक नारा विलायत नारा विलायत अली हक नारा हैदरी। मैं सीधे का शेर छोड़न लगा लेकिन थोड़ी मोहब्बत वेख के पढ़न लगा तो मेरा वीर साड़ी ना मान शिया दे लाकर दी ना मान मौलवी दी ना मान सईदां दी ना मान बुजुर्गां दी ना मान तोड़े अपनियां दी ते मान अपनियां दी ते मान ये आख लगा अपनियां दी कहंदी मन्ना वो सवेरे मीटर चोरी करदा ना पी गया तो मैं क्या उस दी नहीं मैं ते ओदी आखिया दा कहंदी आ कि मैं आखिया उस दी मान जेदा काबे च मसल्ला तसव्वुर करदा है अपनी फिका दे चौथे इमाम दी केड़ा मैं कहा जनाब शाफी फारग होए उन्हें आख्या फतवियां दा कम करा घर आए तहकीक की कुरान च आया पहली आस्तीन खोली कायनात दे खालिक दे 99 नामां ते नजर पई तहकीक है ना 99 नामां ते दीद पई दरमियान च नाम अली नजर आया दरमियान च नाम अली नजर आया सी किताब बंद कीती सोचना शुरू कीता जिवें तुसीं पिछे बैठ के सोचदे पे हो सोचना शुरू कीता उस आख्या गल इंज नहीं अगों तहकीक घर आया लाइब्रेरी खोली किताबां चाहिए लै किताब का मैं ना जाना है तो थोड़ा हाँ ठर जाना है घर आया किताबां खोलियां किताब कटी किताब का टाइटल नहजुल बलागा नहजुल बलागा पहली आस्तीन खोली उत्ते लिखा होया है मैं ओ अली हां जेड़ा जमीना नालों आसमानां दे रस्ते बेहतर मैं ओ अली हां जमीना नालों आसमानां दे रस्ते बेहतर जानदा मैं ओ अली हां जेड़ा कायनात नूं रिज़्क तकसीम करदा मैं ओ अली हां जेड़ा बारिश बरसांदा है मैं ओ अली हां जेड़ा मावां दे शिकमां अंदर बच्चियां दी तस्वीर बनांदा है जागी किताब बंद कीती सोचना शुरू किया कुरान किताब आखन लगा क्यों ना हूँ एक कायनात ते तहकीक कर ला एक कौम ते रिसर्च की पेड़ी कौम है नुसहरी का ख्याल जहन च रखा है जेड़े तहकीक की किया है जहाँ जिसको मौला अली कह रहा है नुसहरी उसे ही जली कह रहा है।
मौला अली कह रहा है, नुसैरी उसे ही जली कह रहा है। यही सोच कर शाफी मर गया, यही सोच कर शाफी मर गया कि इनमें खुदा कौन है। तो मैं वादा किया ही कि कसीदे अपने आप सुनवाना, लेकिन तुम माशाल्लाह सुने ही इतना अच्छा है, दिल करता थानू सुनवाना। तो लेकिन मेरी भी गुजारिश सुन, एक कसीदा मैं भी सुनना, सुन लाना। इतनी बुलंद सलवात पढ़ो जो दिल राजी हो रही। पढ़ो हाँ, पढ़ना ही पढ़ो, फिर भी सलवात पढ़ो। तेरा 6वां लाल वलायत था। सरकार बैठे खसूसी तौर से जितने मोमिन आए ना, जेड़े अपने आप को समझते हैं जो मैं बड़ा गरीब हाँ, ना 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 दिल च ख्याल भी नहीं लैके आना। तुसी अल्लाह दी कसम है जमाने दे गनियां नाल होते हो। सरकार को बंदा आया, आख लगा सरकार कौन डाढ़ा गरीब हाँ, मैं बड़ा गरीब हाँ। सरकार सिर तू लग के पैरा तक डिठा, पास देख के आते क्या आख्या तू गरीब है? सरकार मैं बहुत डाढ़ा गरीब हाँ। दूजी दफा सरकार आखे तेन समझ नहीं आई, मैं पूछा क्या आख्या तू गरीब है? आख लगा सरकार ना मेरे को कपड़ा, ना मेरे को जुत्ती, ना मेरे को रोटी, ना मेरे को मकान, मैं गरीब नहीं तो होर क्या? सरकार ने खबरदार तेरे तो बड़ा अमीर कोई नहीं। आख लगा सरकार ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, ते मेरे तो बड़ा अमीर कोई नहीं। आख लगे ए दसा तेरे दिल च साड़ी बलायत है या कोई नहीं? सरकार मौजूद है। सरकार आखते अच्छा इंज कर, इतने लाख दिरहम गिन, वलायत छोड़ दे। आख लगा सरकार मैं मरदा मर जाऊंगा, वलायत नहीं छोड़ने लगा। सरकार कहता टुर जा, तेरे तो बड़ा अमीर कोई नहीं। जिस टाइम आख्या ना ये हम बंदा निकलिया है सरकार के बारगाह चो, सीधा आया है मस्जिद बाहर है। मस्जिद के बाहर आके इंज हाथ कीते ने, आसमान के पासे दीद की वेख के केड़ी करा तेरा ऐसा है मौला अली दा जेड़ा प्यार मिल गया है। बन गया मेरा दिल से सीधा पढ़ के बंद पढ़ के छोड़ दिया, लेकिन सरकार का हुक्म, सरकार का आर्डर इंज पक्का गार्डर हाँ सच्ची दिन दसा वो दस के मैं इंशाल्लाह जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। लो दोस्तों बुजुर्गों भाइयों सुनागा भी फेर नहीं,
ਤੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਆਦਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰ, ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰ। ਉਹ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਲੀ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਅੱਖ ਲਗਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ सच्ची तेन दसनी है गल मेरा चाहे अगो तेरी मर्जी है मन या न मान। ਅੱਖ ਲਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। सच्ची तेन दसनी है गल मेरा चाहे अगो तेरी मर्जी है मन या न मान। सच्ची तेन दसनी है गल मेरा चाहे अगो तेरी मर्जी है मन। सच्ची तेन दसनी है गल मेरा चाहे अगो तेरी मर्जी है मन या न मान। दिल में हो बुलंद मयार होता है अली का प्यार, अली का प्यार, अली का प्यार दिल में हो बुलंद मयार होता है। सही मोमिन जो उसका सही किरदार होता है, जो चूली पे भी चढ़कर ये कहे लोगों अली हक है। समेत मार होता है। सच्ची तेन दसनी जिवें मैं पढ़ता कारी कुरान हदीस पढ़ता रहता कसीदा 2 घंटे काफी नाल, लेकिन मैं आया मकसद सच्ची तेन दसनी गल मेरा चाहे अगो तेरी मर्जी मन जन्म। सच्ची तेन दसनी गल मेरा चाहे अगो तेरी मर्जी मन अली वाला अली वाला दमदम अली नु पुकारे जेड़ा खारजी है चुप कर गुजारे, जेड़ा खारजी है चुप कर गुजारे। अलाली नु नारे दी दावत पे देना, जेड़ा फारमी है वो बेशक न मारे। सच्ची तेन दसनी मुखालफ न बन अगो तेरी मर्जी मन या न मान। बिस्मिल्लाह। जीरक लोग, पढ़े लिखे लोग, माशाल्लाह सारे समझदार। अल्लाह की कसम गल आखन लगा, ये दसो मैनू जरूरत होवे रोटी दी, मैं टुर जा मोची दी दुकान ते कोई जोड़ है? कोई जोड़ नहीं। मैनू जरूरत पै गई कपड़े दी, मैं टुर गया लोहार दी दुकान ते मिल जाएगी? ना ना। अल्लाह की कसम मसाल जहन चाहिए किवें बई जदे कोल होवे से उस तो मंगी दिए मंगते या कोलो किते जन्नत डही मेरी अकल दी दुख ना किवें भी जदे कोल होवे से उस तो मंगी दिए मंगते या कोलो किते जन्नत डही दिए। जदे कोल होवे से उस तो मंगी दिए मंगते या कोलो किते जन्नत डही दिए। जन्नत दे मालिक हुसैन दे हसन अगो तेरी मर्जी मन या न मान। इंशाअल्लाह ताला शायद फिर तख्लीक पंज तन पर खुदा को गरूर है, तख्लीक पंज तन पर खुदा को गरूर है, और औसाफ किब्रिया का इन्हीं से ज़हूर है। और ततहीर के नज़ूल ने साबित ये कर दिया, वो रिजस है जो आले मोहम्मद से दूर है। यहाँ पर वही आएगा जिसको ये बुलाएंगे। जिस तरह नापाक ज़ुबानों पर ये नाम नहीं आ सकता, उसी तरीके से ये उनको आने ही नहीं देते जिनकी निजात नहीं हो सकती।
لہٰذا جو اس در سے اٹیچ ہیں ان کی اپنی ایک شان ہے، ان کا اپنا ایک مرتبہ ہے. تو یہ ابھی جہاں پر ایک بھائی بیٹھے تھے وہ مجھے ایک دو پروگراموں میں ملے ہیں، وہ نعرہ ولایت لگواتے ہیں. تو کچھ دوست اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نعرہ ولایت کدھر سے آ گیا. یہ چند سال پہلے نہیں ہوتا تھا مجالس میں. یہ غلام باز صاحب میری بات کی تائید کریں گے، لیکن قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین یؤمنون ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ہم راکعون. ایسے ہی اللہ کہتا ہے ایک ہوں میں تمہارا ولی، دوسرے وہ لوگ، دوسرا تمہارا رسول تمہارا ولی. انما ولیکم اللہ ورسولہ، جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں واو کا لفظ استعمال ہوتا ہے فکرے کو کنٹینیو کرنے کے لیے، کہ فکرہ چلتا رہے. جیسے انگلش میں اینڈ، اردو میں اور، عربی میں واو چلتا ہے. جیسے ہے نا آیت وضو میں ہے کہ جس وقت تم کھڑے ہونا چاہو نماز کے لیے، وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اسی صیغے میں، اسی طریقے میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. انما ولیکم اللہ، ایک ہوں میں اللہ تمہارا ولی، ورسولہ، اور میرا رسول ہے تمہارا ولی، والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین یؤمنون ویقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، ہم راکعون، بیچ رکوع کے. تو وہ ہستی صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہیں جناب مولا کائنات امیر ممکنات. آپ نے جب وہ ایک سائل آیا، اس نے آ کے سوال کیا کوئی ہے جو مسجد نبوی میں سرکار نماز پڑھا رہے ہیں. میں نے روایت پڑھی کہ جناب مولا کائنات کہیں مزدوری کر کے آ رہے تھے، پیچھے جگہ ملی، نماز میں شامل ہوئے. آنے والے نے، سائل نے صدا دی، کوئی ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کے نام پر اللہ کے نبی کی موجودگی میں مجھ فقیر کی مدد کرے. جس وقت اس نے یہ بات کی، ایک دفعہ صدا دی، دوسری دفعہ دی، تیسری دفعہ بھی صدا بلند کی تھی کہ جناب مولا کائنات امیر ممکنات نے حکم دیا، انگشتری اتری اس کے ہاتھ پر گئی. اب وہ گلی گلی میں نعرے لگا رہا ہے، یا علی تیرے بچے جی ہیں، یا علی کیا بات ہے، یا علی بڑی شان ہے. تو اس کے موقع کے اوپر اس چیز کو دیکھ کے ایک شاعر نے ربائی لکھی، وہ اس وقت جس کو نعرہ لگایا اسی وقت میرے ذہن میں آئی. تساں غیر شناس ہو جان دے نہیں جڑی مندری میکوں ڈئی ہے، ایکوں ڈٹے ہن بوسے نبیاں نے جڑا عرش بری تے گئی ہے، تے چن عمران دی انگلی وچ مس نال رسول دے تھئیے، طالب تے مطلوب دیاں ایوی گلاں اوتھے سن دی رہی ہے. نعرہ حیدری. اب آپ کے سامنے اس سے پہلے کہ جناب حرف آخر کے طور پر مولانا سید شمس الرضا شمسی صاحب کو دعوت سخن دی جائے، قبلہ علامہ جناب علی رضا صاحب و فیصلہ آباد رونق افروز ممبر ہوں گے. اور جیسے ہی ان کو کہہ دیا ہے کہ جیسے ہی علامہ شمسی صاحب تشریف لائیں گے وہ ممبرز کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ کوئی بھی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار. برائے خشنودی ہے قائم آل محمد بلند تر صلوات. بابا سے بلند تر صلوات. معصوم فرماتے ہیں کہ ہم پر بآواز بلند درود پڑھنے سے ذہنوں سے نجاست جاتی ہے، پاکیزگی آتی ہے. مل کے بآواز بلند درود پڑھے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل تاج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات. سورہ بقرہ سے بڑی مشہور و معروف آیات کی تلاوت کا جذبہ کیا ہے اور قبلہ کی موجودگی میں صرف 2 جملے میں پڑھ کے مسائل بھی میں نہیں پڑھوں گا، مسائل قبلہ ہی پڑھیں گے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. اور پہلی میری گزارش یہ ہے کہ قرآن جب بھی منبر سے پڑھا جائے تو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، اس لیے کہ قرآن وہ ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ نے کہا تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے نازل کیا ہے تو ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو جو اللہ کی حفاظت میں ہو تو کتنا بڑا محفوظ کتاب ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو کوشش کیجئے گا کہ جو بھی اس منبر سے قرآن پاک پڑھے تو آسان طریقے سے پڑھے. اللہ نے کہا تھا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، سمجھ سمجھ کے پڑھو. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی سپیڈ ٹو سپیڈ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن ان سے نہیں لیا جو سپیڈ ٹو سپیڈ پڑھتے ہیں، ہم نے اس سے قرآن لیے ہے کہ جس نے نیزے پہ پڑھ کے بتایا اگر کوئی غلطی ہے تو بتاؤ. ہم نے اس سے لیا ہے. میرے عزیزوں، تو میں نے کہا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ میرے حبیب ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے
وبشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ بے ساختہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اب میں یہاں پہ کوئی مجلس نہیں پڑھ رہا بلکہ ایک پیغام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم وہ لوگ جو کہتے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں، قالوا اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھو، تم میری طرف سے ہو۔ قالوا انا للہ، کہ تم اللہ کی طرف سے ہو۔ اب یہیں پہ ایک لفظ دینا چاہ رہا ہوں، اللہ کہتے ہیں قالوا انا للہ، تم اللہ کی طرف سے ہو، معمولی نہیں ہو کہ تم کہہ دو کہ ہم ویسے ہی دنیا میں چلتے پھرتے رہے۔ اللہ کہتا ہے قالوا انا للہ، تم میری طرف سے دنیا میں آئے ہو۔ یعنی عجیب بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم میری طرف سے دنیا میں بھیجے گئے ہو، تو اب اگر کامیاب ہونا ہے تو طریقہ ایک ہی ہے، جب میری طرف سے آئے ہو تو میرے بن کے رہو۔ قالوا انا للہ، میری طرف سے آئے ہو تو اگر کامیابی چاہیے تو میرے بن کے رہو، جب میری طرف سے آئے ہو۔ بھی دیکھو اللہ نے قرآن میں ایک آیت رکھی، اور میرا جو طریقہ ہے کہ میں آیتوں سے ہی پڑھوں گا۔ اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس، آیتیں وہ پڑھوں گا جو آپ کو یاد بھی ہوں گی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہاں پر تو سورہ طور میں کہہ رہا ہے، سورہ زاریات میں، کہ اس لیے پیدا کیا وہ عبادت کریں، اور وہاں پہ ایک جگہ سورہ یونس میں کہنے لگا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے بنایا۔ یہاں کہہ رہا ہے عبادت کے لیے، وہاں کہہ رہا ہے جہنم کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت ہے کہ اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا تھا عبادت کے لیے۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم جہنم میں جاؤ، میں نے تو تمہیں عبادت ہی کے لیے پیدا کیا تھا۔ اب یہ تمہارا فعل ہے کہ تم شیطان کے پیچھے لگ کر جہنم میں چلے جاؤ۔ آواز ہے میں نے تو تمہیں عبادت کے لیے ہی پیدا کیا تھا، میں چاہتا تھا کہ تم جنت میں چلے جاؤ، اس لیے کہ بیٹے ہمیشہ وہی رہتے ہیں جہاں سے باپ آتا ہے۔ بھی ہمارے باپ کی اصل جگہ جنت ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ تم جاؤ، لیکن طریقہ بتا دیا انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، تمہیں دونوں راستے دکھا دیے، اب تمہاری مرضی ہے کہ کس راستے پہ چلو گے۔ تو اب اللہ کہتا ہے تم آئے ہو میری طرف سے، آئے ہو میری طرف سے۔ اچھا یہاں پہ ایک اشارہ کر دوں، آئے ہیں ہم اللہ کی طرف سے، تو بھائی جب ہم اللہ کی، جملہ سمجھیے گا، جب ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو جو ہماری ہدایت کے لیے آئے گا اسے بھی ہم نہیں بنائیں گے، وہی سے آئے گا۔ جب ہم اللہ کی، نہیں سمجھے کچھ بچے، جب اسٹوڈنٹ وہاں سے آیا ہے تو ٹیچر بھی وہی سے ہی آئے گا، ہم کسی کو نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اللہ کہہ رہے آئے ہیں میری طرف سے، اور پھر کہہ رہے ختم ہو رہی ہے بات وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، آئے ہو میری طرف سے اور واپس بھی میرے ہی پاس آنا ہے، واپس پلٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے۔ ختم ہو رہی ہے بات، آئے ہیں اللہ کی طرف سے، جائیں گے اسی کی بارگاہ میں، یعنی نہ ہم اپنی مرضی سے آ سکتے ہیں نہ ہم اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں، آئے ہیں تو بھی اس کی مرضی سے، جائیں گے تو بھی اس کی مرضی سے، یعنی لایا بھی وہ ہے، لے کے بھی وہی جائے گا، آئے ہیں تو بھی اس کی مرضی سے، جائیں گے تو بھی اس کی مرضی سے۔ جملہ آخری دے رہا ہوں اور اسی پہ مجلس تمام ہو جائے گی۔ آئے ہیں تو بھی اس کی مرضی سے، جائیں گے تو بھی اس کی مرضی سے، لیکن اللہ نے قرآن میں ایک عجیب آیت رکھی، اور آپ کو یاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک ایسا ہے جس نے نفس بیچا مرضیاں خریدی، نفس بیچا، آخری جملہ، نفس بیچا مرضیاں خریدی، یعنی اللہ نے ہجرت کے شب علی کا جسم نہیں خریدا، علی کی روح نہیں خریدی، علی کا
नफ्स खरीदा है। नफ्स का दूसरा माना है मर्जी, यानी अल्लाह ने अली की मर्जियां अपने पास रख ली हैं। अब अली कुछ काम भी करेंगे तो वो अली की मर्जी से नहीं होगा, वो अल्लाह की मर्जी से होगा, इसलिए कि अली की मर्जियां उसके पास है। अब अगर अली खैबर को उखाड़े, अली ने अपनी मर्जी से नहीं उखाड़ा, अल्लाह की मर्जी से उखाड़ा है। अगर अली मरहब को मारे तो अपनी मर्जी से नहीं मारा, अल्लाह की मर्जी से मारा है। अगर अली उमर इब्ने अब्दे वुद को मारे तो अपनी मर्जी से नहीं मारा, अल्लाह की मर्जी से मारा है। अगर अली भागते हुए को छोड़ दे तो अली ने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा, अल्लाह की मर्जी से छोड़ा है। अगर रकू में ज़कात देंगे तो अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा, दी अल्लाह की मर्जी से दी है। और अगर अंगूठी देंगे तो अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से दी है। अगर बिस्तर पे सो के मर्जियां खरीदी हैं तो अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से। यानी अली के पास है उसकी मर्जियां, उसके पास है अली की मर्जियां। भाई हम ना हम अपनी मर्जी से आ सकते हैं, ना हम अपनी मर्जी से जा सकते हैं। आए हैं तो भी उसकी मर्जी से, जाएंगे तो भी उसकी मर्जी से। अली की मर्जियां उसके पास है। अब ना एतराज करना काबा में क्यों आ गया, ना एतराज करना मस्जिद में क्यों गया, इसलिए कि अली की मर्जियां तो उसके पास है। अगर काबा में आया है तो भी उसकी मर्जी से आया है, अगर मस्जिद में गया है तो भी उसी की मर्जी से गया। बात समझ में आई? अली के पास है उसकी मर्जियां, उसके पास है अली की मर्जियां। ना हम अपनी मर्जी से आ सकते हैं, ना हम अपनी मर्जी से जा सकते हैं, और अली की मर्जियां तो हैं ही उसके पास। तो इसका मतलब ये है अगर अली मस्जिद में जा रहे हैं तो अपनी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी से। ऐसे तो नहीं कहा था खुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया, इसलिए कि अली बताना ये चाह रहे थे कि मेरा जिंदगी का मकसद ही यही था, आया हूं तो भी उसके घर में, गया हूं तो भी उसी के घर में। यानी अली की पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए गुजरी, अल्लाह के लिए गुजरी है। मेरे अजीजों, अली की पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए है। तो जब उसकी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए है तो क्या उसका जिक्र अल्लाह का जिक्र नहीं होगा? क्या उसे पुकारना, खुदा को पुकारना नहीं होगा? तो अब मेरे अजीजों, अली की पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए है, खत्म हो गई बात। तो अब जब भी अली का जिक्र होगा, जहाँ भी अली का जिक्र होगा, तो वह अली का नहीं, खुदा का जिक्र हो रहा है। तो हम इसीलिए इन मजालिस को सजा के बैठे हैं। ये इनका जिक्र नहीं हो रहा, ये अल्लाह का जिक्र हो रहा है। और अल्लाह ने वादा किया था फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। तो इन्होंने तो ऐसे किया कि सर नेज़े पे था और फिर भी उसका जिक्र जारी था। अल्लाह ने कहा जब तक तुम रहे तुमने मेरा जिक्र किया, अब जब तक मैं रहूँगा मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। इसलिए ये जिक्र कभी रुक नहीं सकता, जितनी मर्जी दुनिया कोशिशें करती चली जाए, ये जिक्र कभी नहीं रुक सकता। जितनी मर्जी कोशिशें हो जाएं, ये कभी नहीं रुक सकता। एक बार हुसैन ने इसी जिक्र के लिए कुर्बानियाँ पेश करनी शुरू की, कुर्बानियाँ पेश करनी शुरू की। एक एक कुर्बानी हुसैन देते जा रहे थे। जब कुर्बानियाँ देते जा रहे थे तो एक बार शबीह रसूल अली अकबर बाबा के सामने आए, कहा बाबा मुझे भी इजाज़त दे दीजिए, मैं भी अल्लाह की राह में कुर्बान होना चाहता हूँ। हुसैन ने कहा अकबर मैं कौन होता हूँ जिसने 18 साल पाला है, उससे इजाज़त ले। अकबर आगे आगे, हुसैन पीछे पीछे। जैसे ही खैमे में पहुँचे, आलिमा गैर मुअल्लिमा थी, देख के कहा अकबर मैं समझ गई थी क्यों आया है, बस इतना याद रखना तेरे बार मेरा भाई नहीं बचेगा। अजरुकुम अल्लाह। कहा अकबर इतना सोच के जाना। कहा नहीं मुझे इजाज़त चाहिए। कहा मैंने दी इजाज़त। अकबर ने कहा बाबा अब जाऊँ? कहा माँ ने जो इजाज़त ले ली, जिसने पाला है, अब उससे भी ले जितने तुझे दुनिया में लाया है, कि तुझे दुनिया में लेके आई है। अकबर चले, जनाब उम्मे लैला के कामे के सामने आए। अब अकबर ने जो मंजर देखा आंखों से आंसू जारी हो गए, इसलिए कि जनाब लैला ज़मीन पे बैठी हुई थी और लकीरें खींच रही थी।
कभी कभी लकीरें खींचते हुए आसमां की तरफ देख कर रो के कहती क्या हुआ अगर उसने पाला है तो मेरा ही बेटा। अजरुकुम अल्लाह अकबर आए काम माँ इजाज़त है। अब हर माँ की हसरत होती है जिनकी जवान औलादें बैठी हैं, हर बाप की हर माँ की हसरत होती है मेरा बेटा जवान है मैं इसकी शादी करूँ। सब कहें शादी मालिक आपके जवान के दर्जात को बुलंद फरमाए। हर माँ की हसरत होती है मेरा जवान है मैं इसकी शादी करूँ, मैं इसके सेहरे लगाऊँ। हर माँ ये मन्नतें मानती है। अकबर ने कहा अम्मा मुझे इजाज़त है मैं चला जाऊँ। एक बार जनाब लैला ने कहा अकबर तुझे इजाज़त है लेकिन बेटा सुन मैंने मन्नत मांगी है तेरी शादी की नहीं, तेरे ब्याह की नहीं, तेरे सेहरे की नहीं। अम्मा क्या मन्नत मांगी है? रो के कहती है 4 रकत नमाज शुक्राना पढ़ूंगी जब तेरी लाश खैमे में आए। अजरुकुम अल्लाह आखिरी फिक्रा दे रहा हूँ मेरे अजीज़ों। अकबर चल पड़े। अकबर ने कहा बाबा अब तो इजाज़त है मैं चला जाऊँ। कहा हाँ अकबर चला जा। अब अकबर घोड़े की जीन पे बैठे। अकबर ने मैदान की तरफ जाना चाहा। आखिरी जुमला दे रहा हूँ, अकबर ने मैदान की तरफ जाना चाहा। हुसैन ने अकबर के पीछे चलना शुरू किया। हुसैन ने अकबर के पीछे चलना शुरू किया। जुमला सुनना, एक बार काफ़ी दूर चले। जैसे ही चले अब हुसैन ने देखा कि अकबर ने अपने घोड़े को तेज़ कर लिया। अकबर ने अपने घोड़े को तेज़ कर लिया। अल्लामा अकील गुरबी ने जुमला लिखा, उन्होंने कहा जैसे ही अकबर के घोड़े के कदम तेज़ हुए हुसैन ने अपने कदम को तेज़ कर लिया। अब उन्होंने जुमला लिखा, एक बार अकबर ने अपने घोड़े को और तेज़ किया, हुसैन ने अपने कदमों को और तेज़ किया। उन्होंने लिखा एक बार अकबर ने घोड़े को दौड़ाना शुरू किया या हुसैन ने अपने हाथ कमर पे रखे और अकबर के पीछे भागना शुरू कर दिया। अकबर के पीछे, आखिरी जुमला दे रहा हूँ, अकबर के पीछे भागना शुरू कर दिया। अकबर ने देखा पीछे कोई आ रहा है, बाबा आ रहा है। अकबर रुक गए। बाबा नहीं जाता, मैं नहीं जाता अगर आप नहीं जाते। कहा नहीं चला जा। कहा बाबा फिर आते क्यों हैं? मुझे इस तरह ना देखिए मैं नहीं जा पाऊंगा। अब हुसैन ने अकबर को देखा और ठंडी सांस भरी। जितनी जवान औलादे वाले बैठे हो इसी जुमला रोने के लिए काफी है। कहा बाबा फिर जाने क्यों नहीं दे रहे? एक बार हुसैन ने अकबर का चेहरा हाथों में लिया और रो के कहते हैं तेरा कोई अकबर जो नहीं है, तेरा अकबर होता तो मैं पूछता जवानों को कैसे भेजा जाता है। मेरे अजीजों हुसैन ने कहा अकबर चला जा। अकबर चले गए, जंग लड़नी शुरू की। एक बार हसीन बिन नमीर लानती ने अकबर के सीने में बर्छी मारी और तोड़ के कहते हैं मैंने सुना है बहुत साबिर है, मैं देखता हूँ जवान के सीने से बर्छी कैसे निकालता है। अब जो अकबर के सीने में बर्छी लगी अकबर से संभला नहीं गया। हर शहीद जैसे ही ज़ीन से ज़मीन पर आया उसने कहा मौला मुझे बदर के लिए आइए, आका मेरी मदद के लिए आइए, बाबा मुझे बताइए, चाचा मुझे बताइए। लेकिन अकबर के सीने में जब बर्छी इसने तोड़ी तो अकबर ने जमीन पर आते हुए एक ही जुमला कहा, रो के कहते हैं बाबा मैदान में ना आना, कातिल बहुत ज्यादा हैं, बाबा मैदान में ना आना, बाबा वहीं से सलाम कर देना। अल्लाह लानतुल्लाह है।